देखो यार, देखो अभी तक हमने क्या बात करी है, ध्यान से देखना। एमएल में जो हम पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस के हिसाब से बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे मशीन लर्निंग में एक सुपरवाइज्ड लर्निंग और एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में दो टेक्निक होती है, एक को बोलती है रिग्रेशन और एक को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग अभी इसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद इस पे आएंगे, ये सबसे अधिक टाइम ये लेगा। ठीक है, इसके बाद इधर आएंगे। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिग्रेशन। ध्यान से देखो, देखो रिग्रेशन क्या होता है एक्चुअली। रिग्रेशन हो या क्लासिफिकेशन हो, कोई भी चीज हो, हम बेसिक चीज करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डेटा। देखो ध्यान से इधर, जैसे मान लो यहां पर एक ग्रुप 1 है और यहां पर एक ग्रुप 2 है। ठीक है, और दोनों कैटेगोरिकल ग्रुप है, जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द, एक मिनट कोई ज्वाइन कर रहा है। जैसे यहाँ पे ग्रुप 1 है, सपोज ग्रुप 1 इज लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, देन अगेन डॉक्टर, doctor, engineer, and maybe one other profession. Let's take about the lawyer, like this. So yeah, we have a three different profession. Or now suppose you are talking about the another type of categorical variable. Suppose he is a doctor. He has a car. Maybe the car brand is X. Maybe there's Audi or anything else. But let's don't take those names. You know? So suppose this is X, engineer generally take maybe Y type of brand. So wherever engineer will take Y, then X, then X. Liar has the another type of brand is Z. So this is data. Here we have the categorical variable, that is doctor, engineer and lawyer. और यहाँ पे है brand, which type of like brand he is taking for maybe car. Now suppose you want to take a relation between this data and this data set and this data set. So how can we find some relation, even whether there is some relation available in this data or not? If available, how that is relation, like अगर relation है तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कोई नया बंदा आए और डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, लॉयर हो, और हम प्रिडिक्ट करें कि किस टाइप का कार वो ले सकता है, अरेंज कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि डेटा के अंदर किसी तरह की पॉसिबिलिटी को पाना, कोई रिलेशन अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि अगर एक कैटेगोरिकल डेटा है, ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी दिस इज कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल मीन्स लाइक द नॉट अ, जैसे देखो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, मे बी आईएएस है, आईएफएस है, सब टाइप ऑफ जॉब्स इज डूइंग, है ना। सो डिफरेंट डिफरेंट आर द कैटेगोरिकल, सो कैटेगरी, लाइक डॉक्टर इज अ कैटेगरी, इंजीनियर इज अ कैटेगरी। जो कैटेगोरिकल वेरिएबल, एक होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। Continuous, like suppose I'm talking about the age of the students, or maybe age. Engineer with 36, doctor lawyer का age 44 है, ऐसे कुछ age है, like just giving some age. These ages are now become continuous value is changing. What the point? हो सकता है again एक इंजीनियर का यहाँ पे you gave 36, maybe second engineer will 24, है ना। So definitely it's changing. The age are continuously changing. So here we have a, here we have a doctors and here we have a
continuous values. So that continuous value is continuously changing. But here you can see this is categorical, like here is categorical and it's categorical. So in your DA class, either you completed then you learn, or maybe you will complete they will teach you, like who will take the class, maybe Ankit sir will take the class and he will teach you. Whenever there's a categorical data, we will use chi-square test. Whether there is some information available or not. So in your DA course, है ना, ये चीज़ें given है, like ANOVA test, T test and chi-square test. So generally used in such case chi-square test, जहाँ पे categorical हो. Okay. So right now talking about machine learning. So in machine learning we try to find some relation in the data. Okay. So then what is regression? Let's talk about the regression. So regression is another technique, regression is that technique. What is we doing in regression? Here you see the categorical data, but in regression we have a continuous data. Always remember, in target you will find the continuous data. Then it's the regression problem. Okay. So see this. You have to remember t-test, ANOVA test and your chi-square test. So t-test generally we apply when data is continuous. जिनको थोड़ा बहुत आता होगा वो पूछ सकते हैं कि हम जी टेस्ट भी तो लगा सकते हैं. तो डेफिनेटली वी कैन यूज जी टेस्ट एज वेल. बट जी टेस्ट में एक प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन का वेरिएंस पता होना चाहिए. ये अगर नोन है तो यू कैन अप्लाई जी टेस्ट, क्योंकि जी टेस्ट का फॉर्मूला अगर देखो तो ये होता है x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा अपॉन अंडर रूट n, and this is a population variance. Okay, the population variant. But t test का फॉर्मूला क्या होता है? T is equal to x minus mu divide s by root n. So this is sample variance. Okay, this is sample variance. Sample is always there, na? That's why t is very easily you can apply t test. But for g test we need a sigma. Then where we apply ANOVA test? ANOVA is basically called analysis of variance. Whenever you are try to compare more than two groups, you apply ANOVA test. T test is generally for two groups, like you are compare two things, okay, or maybe your sample with your population, then T test. But suppose you are trying to compare with two group, more than two group, you can apply ANOVA test. और chi square तो मैंने जस्ट अभी बताया ही आपको कि when you can apply chi square test. What these things? तो देखो मैं इसलिए सब बता रहा हूँ. तो एक एग्जाम्पल करते हैं हाइपोथेटिकल टेस्ट का जी टेस्ट पे. तो ध्यान से देखिए और समझिए. मान लो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा. मैं ये ना एक बुक का है क्वेश्चन, मुझे याद नहीं कौन सा बुक है, बहुत समय पहले मैंने पढ़ा था बुक. क्वेश्चन है द मीन रिस्पॉन्स टाइम फॉर अ रैंडम सैंपल. तो क्या आप लिखा है द मीन रिस्पॉन्स टाइम फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 30 पिज्जा. तो क्वेश्चन लिखा है 30 पिज्जा. ध्यान से पढ़ने दो. पिज्जा डिलीवरीज इज 32 मिनट्स. वो कह रहा है कि द मीन रिस्पॉन्स टाइम फॉर अ रैंडम सैंपल्स ऑफ 30 पिज्जा डिलीवरी टू 32 मिनट्स. मतलब मीन 32 मिनट्स जो मीन है सैंपल का. एंड कह रहा है द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो गिवन है 10 मिनट. ठीक है. अब देखो, the manager want to perform a hypothetical test that like label of significance. हमेशा याद रखना, बताता हूँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विथ 0.05. ठीक है. टू डिटरमाइन whether the service goal of 30 minute or less is being achieved or not. देखो ध्यान से क्या कह रहा है.
आवाज नहीं आ रही क्या? सर क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है सर, क्वेश्चन शो? आंसर शो हो रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन तो मेरे नोटबुक में ना पढ़ के सुना रहा हूँ ना, क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि पिज्जा जो कंपनी है वो एक अपने कंपनी के अंदर क्या करती है, हाइपोथेटिकल टेस्ट करती है, हाइपोथेसिस टेस्ट करती है, और ये जानना चाहती है कि जो हमारा गोल है कि हम 30 मिनट या आधे घंटे या उससे पहले पिज्ज़ा डिलीवरी करते हैं, ये बात सही है कि नहीं है। ये उनका गोल है पिज्ज़ा कंपनी का, है ना। तो कहती है कि मैं लेट्स डू अ हाइपोथेटिकल टेस्ट। हाइपोथेटिकल टेस्ट करने के लिए सैंपल चाहिए। तो उसने लिखा है ना कि द मीन रिस्पॉन्स टाइम फॉर रैंडम सैंपल ऑफ 30 पिज्जा। इसका मतलब वो 30 n इजिकल टू 30 सैंपल डेटा हो गए, ठीक है। अब बोला है कि उस 30 जो सैंपल 30 है, इसका मीन टाइम 32 है, मतलब इसका एवरेज 32 मिनट लगा है बंदों को डिलीवरी देने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? यस या नो? यस सर, आगे। ठीक है। यस सर। अब उसने बोला पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10 मिनट। इस बात का मतलब क्या है कि जो पूरा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है टोटल डेटा। टोटल डेटा मतलब जो अभी तक पिज्जा डिलीवरी हुई है पूरा, मतलब कितना डेटा होगा, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 मिनट का है। मतलब वो 10 मिनट डेविएट करता है स्टैंडर्ड, ठीक है। अब बोला अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अल्फा अल्फा का मतलब ये होता है, अल्फा का मतलब ये होता है, हमेशा याद रखना, अल्फा का मतलब होता है कि मैं इतना परसेंट अवॉइड करने के लिए रेडी हूँ। मतलब ये 0.05 है ना, मतलब मैं इतना परसेंट 0.05% अवॉइड करने के लिए रेडी हूँ कि इतना एरर आए तो कोई बात नहीं, बट इससे ज्यादा एरर आएगा तो मैं अवॉइड नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉल्ड अल्फा। तो अल्फा इज 0.05, मतलब इतनी वैल्यू तक अगर आता है प्रॉब्लम तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए रेडी हूं, बट इससे ज्यादा वो तो अवॉइड नहीं करूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, जब भी ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम है अपने पास, बताता हूं ना तुम्हें, जस्ट लिखने दो यहाँ पे ध्यान से। चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं, सैंपल में क्या गिवन है और पॉपुलेशन में क्या गिवन है। सैंपल गिवन है, नंबर ऑफ डेटा इज 30, सैंपल मीन गिवन है, सैंपल मीन गिवन है 32, स्टैंडर्ड डिवीजन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है 10 मिनट, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 0.05, बस इतना गिवन है। नाउ क्वेश्चन ये था कि वो जानना चाहते हैं कि जो हमारी डिलीवरी है हम आधे घंटे में या उससे कम में कर पा रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब जो हमारा नॉल हाइपोथेसिस हुआ, दैट इज, इसको जनरली ऐसे दिखाते हैं। तो अगर मैं मीन कहता हूं म्यू, म्यू इज लेस देन इक्वल टू 30, मतलब हम एजम्पशन कर रहे हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन मीन है डिलीवरी का, वो 30 या उससे छोटा है। यह हाइपोथेटिकल हमने मान लिया, इसी को हमें पता करना है एक्चुअली, बट हमने यहां मान लिया। तो हमारा अल्टरनेटिव टेस्ट क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर देन 30। इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर ये सही होगा तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, और सही नहीं होगा तो इसको रिजेक्ट करेंगे, मतलब इसका एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब मानेंगे कि नहीं, हम जो हमारा जो पॉपुलेशन एवरेज है, जनरली हम जब डिलीवरी करते हैं तो 30 मिनट से अधिक समय लगता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब अगर तुम बिजनेस एनालिस्ट वगैरह का इंटरव्यू देखो तो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ देते हैं कि ये सपोज एक मॉल में आप जाते हो, ये शहर में मॉल है, बताइए कितने लोग यहाँ आ सकते हैं। तो यू आर ट्राई टू डू द हाइपोथेटिकली, आपको आंसर देना पड़ता है हाइपोथेटिकल करके कि वी विल टेक द हाइपोथेटिकल टेस्ट लाइक दिस, देन वी ट्राई टू डू द एनालिसिस एंड ऑल। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैसे पता करें कौन सा टेस्ट लगाएं। जो सैंपल है वी आर कंपेयरिंग विद द पॉपुलेशन,
सैंपल को पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे हैं, देन वी कैन अप्लाई आइदर जी टेस्ट और टी टेस्ट. ओके, सो वी कैन अप्लाई आइदर जी टेस्ट और टी टेस्ट. अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, देन देयर इज नो नीड ऑफ टी टेस्ट. वी कैन डायरेक्टली यूज जी टेस्ट. ठीक है. देखो जी टेस्ट का फॉर्मूला क्या था. जी टेस्ट का फॉर्मूला था x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा अंडर रूट एन. सो देखो ध्यान से इस बात को समझो. x is basically the sample mean. The sample mean is 32. You already see this. Minus mu is this value जिसकी हम बात कर रहे थे 30. n is number of data, that is 32. Sorry, number data is 30. So take 30 and standard deviation is 10. So sigma divide by था ना root n 30. So now you have to calculate this g value. If you calculate this g value, you will find 1.09. Okay, got it? Now what you have to do? You have to check whether your test is left or right or twist, like both. See, your test is always see this one. If this is this like this greater than, okay, this is greater than na, it means is a right test. If this is a less than means left test. If this is not is equal to मतलब both sided test. हमेशा अल्टरनेटिव को देखो. अल्टरनेटिव बड़ा है तो राइट साइड, छोटा है तो लेफ्ट साइड टेस्ट, बराबर नहीं है तो तुम्हारा हो जाएगा बोथ साइडेड. चूंकि बड़ा है तो राइट साइडेड टेस्ट. सी दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना. योर जी वैल्यू इज 1.09. सो मे बी हियर 1.09 है ना. सो अगर तुम पाइथन में लाइब्रेरी लाइक इवन इफ यू कैलकुलेट द इन पाइथन, आप लोग पढ़े होंगे उसमें स्टैट्स में क्या होता है, आपने डीए वाले क्लास में पढ़ा होगा. फ्रॉम एस सी पाई है ना, इंपोर्ट नॉर्म. ठीक है, और जो नॉर्म है या फिर इंपोर्ट स्टार्ट्स भी कर सकते हैं. स्टार्ट्स you can write stats dot norm. Norm means normal distribution dot cdf. If you give 1.09, जो वैल्यू प्रोबेबिलिटी रिटर्न करता है वो यहाँ तक रिटर्न करता है. एक्चुअली पीडीएफ की क्वालिटी है. इफ यू कैलकुलेट सीडीएफ टू गिव दिस प्रोबेबिलिटी, बट यू आर डूइंग राइट साइडेड थिंग्स ना. यू आर डूइंग राइट साइडेड, so you have to see like this. So that's why we will write 1 minus this. क्योंकि इतना जो है टोटल तो कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 होगा. 1 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी घटा दो तो ये वाला मिल जाएगा. तो वी विल फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अगर इस एंड जस्ट आई डिड द कैलकुलेशन. इफ यू डू द पाइथन यू विल फाइंड दिस वैल्यू इज 0.1378. चेक दिस इज कॉल्ड पी वैल्यू. सो इफ योर पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा है ना. अल्फा की वैल्यू क्या थी 0.005 थी. दैट इज ग्रेटर देन दिस वन है ना. ध्यान से देखो, इज ग्रेटर देन दिस वन. इफ योर पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, इट मीन्स यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर नल हाइपोथेसिस. सो यहाँ पे ज्यादा है इसलिए वी विल एक्सेप्ट दिस नल हाइपोथेसिस एंड वी विल से कि जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले लोग हैं वो जनरली 30 मिनट या उससे पहले ही डिलीवर कर देते हैं. गॉट इट? दिस इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल टेस्टिंग. क्लियर और नॉट ऑल ऑफ यू? हाँ, देखो इधर, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये किसी को पता है क्या होता है ये? एनी वन ऑफ यू? आप लोगों को पता है? किसी यस को पता है शिवम क्या होता है ये? सर, इसमें होता है जैसे कि अगर कोई डेटा है कि डेटा में अगर 4 एंट्रीज है, हम्म, तो किसी पॉइंट पर जो उसका जो वैल्यू आएगा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो आएगी, वो इक्वली सेम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब पढ़ाया है सर ने। देखिए इधर। नहीं सर, आपके लेक्चर से पढ़ा है, वो यूट्यूब पे है ना, वहां से पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए इधर तो यूनिफॉर्म मीन्स प्रोबेबिलिटी विल सेम। सी प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी, ओके? प्रोबेबिलिटी, this probability is same, okay, everywhere. But suppose I want to know what is the value of that, you know. Always remember this. कोई भी पीडीएफ है, उस पूरे पीडीएफ को अगर इंटीग्रेट करें तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी, ओके? सी केयरफुली। अगर मैं कहता हूं कि इसकी वैल्यू -2 है और इसकी वैल्यू 4 है, तो डेफिनेटली 0 कहीं पे होगा। तो कोई बताएगा इसकी विड्थ कितनी हुई? व्हाट इज विड्थ? सूर्या बताओ क्या? 6 हाँ 6 हुई, 6 वेरी गुड। 2 6 पॉइंट इधर, 4 पॉइंट इधर, 6 हो गया। अच्छा ये रेक्टेंगुलर है क्या? यस सर। तो रेक्टेंगल का हाइट h ले लेते हैं। एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का? विड्थ इनटू हाइट। लेंथ इनटू यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि h मल्टीप्लाई 6 इसका एरिया होगा, ये पूरा एरिया होगा। और हमें ऑलरेडी पता है ये एरिया कितने बराबर है? 1 के बराबर है। 1 के इसका बराबर। मतलब h इज इक्वल टू नथिंग बट 1/6। Got it guys or not? All of you. क्लियर है भाई? सभी को बताओ यस या नो? प्लीज राइट यस यस। यस सर। सर। ठीक यस है, सर। तो हमें हाइट निकल गई 1/6। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कहीं भी किसी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6। या तो 0 पे ले लो, 1 पे ले लो, 2 पे ले लो। ये तो बात समझ में आती है। लेकिन यहां पर एक गेम है। गेम क्या है? इफ यू सी, सीडीएफ होता है। सीडीएफ मतलब कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। If I took CDF of 0, if I want to calculate CDF of 0, इसका मतलब CDF क्या होगा? यहां से लेके यहां तक पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। ये पूरी प्रोबेबिलिटी CDF होगी। इसका मतलब CDF जो होगा वो होगा 1/6, हाइट हो गया मल्टीप्लाई 2, बिकम 1/3। सो दिस इज योर CDF। और CDF अगर यहां पे निकालोगे ना तो 1 आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड CDF। बट लग आ रही सिरा, इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ सर, थोड़ा आ रहा है। ठीक है, सो सर दिस तो इज, ऐसा क्यों होता है सर? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये बताओ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 1। 1। और ये किसी चीज की प्रोबेबिलिटी है तो पूरी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी ना, यस सर। है ना? अब प्रोबेबिलिटी होता क्या है, और किसी को ध्यान हो तो? सर, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, क्या ये मतलब अगर इसको डिफाइन करें तो क्या है कि सक्सेसफुल जो भी इवेंट हुआ, डेयर बी टोटल इवेंट, जो डिमांडेड है डेयर बी टोटल इवेंट, है ना? ये प्रोबेबिलिटी है। But right now I'm talking about not this probability, I'm talking about density function, PDF। और PDF की जो प्रोबेबिलिटी वो मिलेगी इंटीग्रेशन के थ्रू। थोड़ा सा ज़्यादा मैथ हो गया, डीपर हो गया थोड़ा सा। सो डोंट वरी, इफ यू सी ना, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बस PDF का इंटीग्रेशन। दिस इज PDF। सो हियर PDF दिस,
और थोड़ी अगर मैथ अच्छी है आपको तो पीडीएफ जो रेक्टेंगुलर का होता है ना उसका एरिया होता है, ठीक है। प्रूव करके दिखाऊं? देखो इधर, अभी सब जरूरत नहीं जानने की, बस उसने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, इसका करो तुम इंटीग्रेशन -2 से लेकर 4 तक, ठीक है। या मान लो इसका नाम देते हैं -x1 से लेके, या फिर x1 से लेके x2 तक एक वैल्यू देते हैं। तो x1 से लेके x2 तक, ठीक है, और हाइट h dx। तो अगर इसको करेंगे तो h तो बाहर आ जाएगा, और यह x1 टू x2, तो इसकी वैल्यू आई h मल्टीप्लाई x2 माइनस x1। यह आ गया एरिया इंटीग्रेशन। सो दैट्स वाई वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन। लिटिल ज़्यादा मैथ हो गया, मतलब इतनी मैथ आपको जानने की जरूरत है नहीं, ये बस समझाने के लिए है। इसको जाना हमें, जाना नहीं जाना हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को है, ठीक है। किसने भी बताया कैसे, वो समझ में आया बात यार? तो अभी समझने के लिए थोड़ा आपको Yes, sir. मैथ मैथ में जाना पड़ेगा अंदर, ठीक है। अगर मेरी डी क्लास होती तो मैं ना पहले समझाता हूँ प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं थोड़ा और पीछे से ले आता, और मैं 4-5 क्लास उसमें ले जाता हूँ मैं। लेकिन अब क्योंकि डी क्लास तो है नहीं अपनी, तो नहीं तो मैं ले जाता उसको थोड़ा और पीछे। बट आप जाएंगे तो ये काफ़ी पीछे चला जाएगा, एकदम हम एम नहीं पढ़ेंगे, फिर डी पढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो लेट्स अवॉइड सम थिंग्स, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अनदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एक तरह का तो यूनिफॉर्म था, इट्स कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे होता है ये, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। म्यू इज बेसिकली योर मीन और सिग्मा इज बेसिकली योर वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन बेसिकली कौन सा, स्टडी स्टैंडर्ड डिवीजन। देखो जनरली maximum time you will find your data will follow the normal distribution curve. Just see this maximum time, right? Go here, right? COVID case in Delhi, suppose I writing here. See, are you able to see? It's follow normal distribution like tape curve. Maximum time your curve follow normal distribution. ये पुराना है, देखो ये अभी देखो वापस से बढ़ने लगा केसेस। इफ यू सी दिस 2 वीक्स केस, ये हट गया। इधर देखो ये तो हमारा ग्राफ है दिल्ली का, लेट्स चेक कर्नाटका। सो केस कम हुआ है क्या? न्यू केस कम हुआ है कर्नाटका, ओके एनीवे गॉट इट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि मैक्सिमम टाइम यू विल फाइंड your data will follow a normal distribution curve. Just ठीक है, see this. So okay, no problem. देखो ध्यान से। So this is called देखो दिख रहा है, this is called a normal distribution curve. This is a Gaussian distribution, also is called Gaussian distribution.
So this is your equation for this particular probability function. Suppose I want to find a probability a CDF at this point, okay, at this point. So it will return this whole value. Suppose this is 0 and this is minus maybe 2. So in Python, how can you do this? How can you find this? Just write from scpy import stats. Just write stats dot norm is normal distribution dot CDF. You're looking for CDF. Just keep this minus 2. So if I write minus 2, and again you have to write mean and variance, this mean and standard deviation, this value. So this particular thing will return कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, एरिया कितना है, मे बी इट्स रिटर्न 0.10. बट सपोज यू वांट कि नहीं मुझे तो ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, ये वाली पूरी प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, ये वाली. सो व्हाट यू कैन डू, यू हैव ऑलरेडी दिस प्रोबेबिलिटी एंड यू नो कि पूरी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी. तो अगर 1 में से माइनस कर दे इस वैल्यू को 0.10 को, तो आ गया 0.9. तो ये वाली प्रोबेबिलिटी मिल गई हमारी. वी आर लुकिंग फॉर दिस प्रोबेबिलिटी. गॉट दिस और नॉट? सर क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. सब किसी को दिक्कत इसमें? ठीक है. तो जो वो GTS था जो हमने हाइपोथेटिकल लिया जब हम पी वैल्यू निकाल रहे थे, तो बेसिकली हुआ क्या कि पी वैल्यू राइट साइडेड था. सो व्हाट हैपन एक्चुअली ना, इफ इट्स राइट साइडेड तो हमें प्रोबेबिलिटी इधर चेक करनी पड़ेगी. तो इसीलिए मैंने वो निकाल के 1 माइनस किया और चेक किया कि वो फिर पी वैल्यू जो आया वो 1 माइनस करने के बाद वो अल्फा से बड़ा है कि नहीं. अगर बड़ा है तो आई कैन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज आई कैन रिजेक्ट इट. आई एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. क्लियर गाइज? सबको समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एक्चुअली सो सिंपल, वेरी सिंपल. जस्ट यू हैव टू डू दिस, वेरी सिंपल. ठीक है. तो आई बिलीव आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? पता है फ्रैक्टल एक करके कंपनी है, उसने ना एक कंपनी को एक्वायर किया है. ठीक है. इट्स कॉल्ड नीन एनालिटिक्स. तो फ्रैक्टल उसको एक्सपेंड करेगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा ML और DA की जॉब आएगी, बहुत ज़्यादा. तो अगर तुम लोग देखना चाहो तो फ्रैक्टल को ज़रूर लिंक्डइन पे फॉलो करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जॉब आने वाली है वहाँ पे फ्रैक्टल में, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड. Sir, बोलो. sir timings यही रहेंगी इस बैच की? हाँ यार, वही मैं ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि कुछ लोग मैसेज किए, मैं देखा ही नहीं, अभी देख रहा हूँ. मैं वही देख रहा था. मैं कोशिश करते नहीं, मैं सोच रहा हूँ 8 बजे करे. 8 बजे में किसी को दिक्कत है क्या? 8 बजे में No, sir. Sir. No, sir.
क्योंकि ना थोड़ा सा पहले कह रहे होगी ना, एक और बैच है ना पाइथन वाला, तो सर